derivations related to the potential energy and escape velocity for a body which is present on the surface of the earth in rest position, as well as when the body is revolving around the earth in circular orbit. First we see the expression or the derivation for a body which is in rest position on the surface of the earth. For this purpose, we consider a body which is in rest position on the surface of the earth. Consider a body of mass m which is in rest position on the surface of the earth, capital R with the radius of the earth, capital M with the mass of the earth. यहाँ पे अपन ने एक बॉडी ली थी, ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है और कैपिटल आर अर्थ की रेडियस है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ। ऐसे सिचुएशन में as the body is in rest position, the kinetic energy possessed by the body is zero because its velocity is zero. Therefore, kinetic energy possessed by this body is equal to zero. Kinetic energy possessed by the body is equal to zero. But body is present on the surface of the earth and it is at a distance from the center of the earth, that is capital R. So gravitational potential and on the surface of the earth is nothing but V is equal to minus gm upon capital R. जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है, अर्थ के सेंटर से ये बॉडी कैपिटल आर के डिस्टेंस पे है, इसके वजह से ये बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V का वैल्यू कितना आएगा माइनस जीरो अपॉन आर एंड द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m. As the mass of the body is small m, the gravitational potential energy possessed by the body is equal to gravitational potential, that is V multiplied by mass of the body. किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? Gravitational potential at that point multiplied by mass of the body. So here capital V gravitational potential, that is minus gm upon capital R. Mass of the body is small m and therefore it is into small. So here potential energy is nothing but minus gmm upon capital R. This is the potential energy of the body. So as the body is in rest position, the kinetic energy possessed by the body is zero, but gravitational potential of the body V is equal to minus gm upon capital R. Hence potential energy is nothing but minus gmm upon capital R. तो यहाँ पे अपन ने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकाली, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ के सराउंडिंग में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। कौन सा फील्ड होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के सराउंडिंग में या किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है, दैट वी कॉल द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये दोनों एनर्जी बॉडी के पास में अवेलेबल होती है। इसके वजह से टोटल एनर्जी possessed by the body, इसके वजह से टोटल एनर्जी possessed by the body it is equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy. किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जब भी अपन फाइंड आउट करते हैं, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जब भी अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों को अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस gmm अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? माइनस gmm अपॉन r। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है, और इसलिए इस बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस gmm अपॉन
कैपिटल R। तो यहाँ पे बॉडी की टोटल एनर्जी आ गई -gm/r। इफ यू ऑब्जर्व द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, total energy of the body is negative, total energy of the body is negative, what it indicates? It indicates that this body bounds to the earth, this body bounds to the earth by this much amount of energy। कि ये जो टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये बॉडी इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हुई है, बाउंड हुई है बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये जो टोटल एनर्जी है ये आ गई -gm/r। तो यहाँ पे अगर मुझे इस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, ये बॉडी को अगर मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो कम से कम मुझे उस बॉडी को इतनी ही एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है, बाहर निकालना है, तो उस बॉडी को कम से कम जितनी उसकी टोटल एनर्जी है उतनी एनर्जी अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। हेंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सो हियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ -gmm/r, it is equal to plus gmm/R। This is the binding energy of the body। तो यहाँ पे बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया gmm/R। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं when the body is in rest position on the surface of the earth। अब ये बॉडी को अगर अपन यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जब ये बॉडी को अपन यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सपोज v विद द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मान लीजिए वो बॉडी को जब अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी वहां पे कितनी है, v है। और ऐसे कंडीशन में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। वो बॉडी को अपन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, gmm/r, और ये एनर्जी कितनी रहेगी, जितनी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv²। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अपना जनरल क्या है, हाफ mv², but here the escape velocity is v and that's why half mv²। it is equal to binding energy का फार्मूला कितना है, gm/r, so it is equal to gmm/R। this small m get cancelled and therefore half v² it is equal to gm/R। therefore v² it is equal to twice gm/R and therefore v is equal to under root twice gm/R। This is the formula for escape velocity, this is the formula for escape velocity for any body on the surface of the earth। if you observe this formula, in this formula the small m is absent, that is the mass of the body is absent। what it indicates, escape velocity is independent of mass of body, escape velocity is independent of mass of body। यहाँ पे स्मॉल m एब्सेंट है, इसके ऊपर से अपने को ये पता चलता है किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड है, अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये फॉर्मूले को अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको अपन कैसे करेंगे, अपना जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। acceleration due to gravity on the surface of the earth, acceleration due to gravity on the surface of the earth is determined by this formula, small g is equal to gm/r²। therefore g into r it is equal to gm/r। instead of this gm/r we can put g into r। therefore
escape velocity is equal to under root ये 2 as it is है, so 2 into gr, and therefore escape velocity for the body in the form of acceleration due to gravity. Escape velocity for the body in the form of acceleration due to gravity, v is equal to under root twice g into r. Is that clear? ख्याल में आ गया?